Hello students, I welcome you to this new chapter in your books for CBSE class 10th. This is the 6th chapter from your book titled Virtually True. It is written by Paul Stewart. Now basically this story deals with virtual reality, the cyberspace and science fiction games which attract teenagers. Now as all of you are also teenagers and today mostly all the children are computer geeks. They are fans of computers. They love playing computer games. So you can easily relate to this lesson because this is also about two young boys who love playing computer games. The title of this chapter, see, this is Virtually True. It suggests that how this unreal world, this virtual world of computers becomes a reality for these boys. Now in order to know the exact story, we'll have to go ahead and read it. So let's get started. Now these are the topics which we'll cover. We'll get some information about the author, then we'll have a background of the story, then we'll have the chapter and its explanation, then there'll be the summary and then the question and answers. Now this is the author of the story, Paul Stewart. He was born in the year 1955 in London. Paul Stewart was born in London in the year 1955 and is writer of children's books, best known for 3 series written in collaboration with the illustrator Chris Riddle. तो पॉल स्टीवर्ट की सबसे ज्यादा जो फेमस कलेक्शन है वो उन्होंने लिखी है इलस्ट्रेटर क्रिस रिडल के साथ और ये स्पेशलाइज करते थे चिल्ड्रन की बुक्स लिखने में, बच्चों के लिए किताबें लिखने में इनकी स्पेशलिटी थी. पॉल स्टीवर्ट लिव्स इन द ब्रिटिश सीसाइड सिटी ऑफ ब्राइटन विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. अब ये जिस सिटी में रहते हैं वो ब्रिटेन में एक सी साइड यानी कि समुद्र के किनारे स्थित है और उसका नाम है ब्राइटन. Now these are the works which have been done by Paul Stewart. His first book was published in the year 1988 और उसका नाम है Thought Domain. And he has since worked for a number of publishers and had over 20 titles published. His titles for Random House children's books include The Awakening, The Midnight Hand, The Edge Chronicles and many more such books. Now let us have a background of the lesson. Virtually True is a story of what is generally called sci-fi or science fiction. A teenaged computer geek brings home a new pack of latest psycho-driven computer games and finds that they are different from the usual stuff he has played so far. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वर्चुअली ट्रू जो कहानी है वो साइंस फिक्शन पर बेस्ड है. ये एक टीनेजर बच्चे की कहानी है जो कंप्यूटर गेम्स का दीवाना है और वो अपने घर एक नई पैक ऑफ गेम्स लेकर आता है जो कि साइको ड्रिवन है. साइको ड्रिवन मीन्स जो आपके दिमाग से चलती हैं एक्चुअली. और जब वो गेम्स खेलता है तो वो रियलाइज करता है कि जो उसके पास पहले कंप्यूटर गेम्स थी ये वाली गेम्स उनसे कुछ अलग हैं. One boy named Sebastian Schultz's memory gets saved in the computer memory when his head bangs on the laptop when he meets with an accident while playing such a game. अब एक और लड़का है सेबेस्टियन और उसकी जो मेमोरी है, एक्चुअल जो उसके दिमाग में मेमोरी है वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाती है जब सेबेस्टियन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस समय गेम खेल रहा था अपने लैपटॉप पे. Those same games were bought by the narrator and his father from a computer fair. अब यही जो गेम खेल रहा था सेबेस्टियन, ये सेबेस्टियन के पास से चोरी हो गई और कंप्यूटर फेयर पर नरेटर जो उसका नाम है माइकल, उसने यही गेम्स खरीद ली. Through the game, Sebastian seeks Michael's help to rescue his memory which has got trapped in the game. अब जब नरेटर ये गेम चलाता है तो उसमें सेबेस्टियन की मेमोरी है वो नरेटर माइकल से हेल्प मांगती है कि वो उसको रेस्क्यू करे ताकि वो गेम से बाहर निकल सके. Now let us begin reading the chapter and its explanation.
Sebastian Schultz. It isn't a name you come across every day, but there it was, large and clear, at the top of the newspaper article in front of me. The reader of the newspaper was a big woman. I couldn't see her face, but I could hear her wheezy breath. अब यहाँ पर सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो एक कैरेक्टर की है, सेबेस्टियन शल्ट्ज। और हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि ये नाम इतना पॉपुलर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं है जो कि हर रोज न्यूज़पेपर्स में छपा हो। ये एक आम इंसान का नाम है, लेकिन उस दिन खबर में इसका नाम बहुत ही बड़ा और क्लियरली लिखा हुआ था न्यूज़पेपर की टॉप पे। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था और उसके टॉप में बड़ा बड़ा ये नाम लिखा हुआ था। तो ये जो रिपोर्ट थी न्यूज़पेपर में वो इसके बारे में थी। ऑल्दो ये लड़का एक सेलिब्रिटी या एक नोन पर्सन नहीं था जो कि इसका नाम अखबार में आए, लेकिन इतनी खास बात थी उस न्यूज में कि इसका नाम इतना बड़े अक्षरों में न्यूज़पेपर के ऊपर लिखा हुआ था। और न्यूज़पेपर पढ़ने वाली एक लेडी थी। नरेटर उसका फेस नहीं देख पा रहे थे, पर उनको उसकी सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। वीजी ब्रेथ का मीनिंग है टू ब्रीथ विद एन ऑडिबल विस्लिंग साउंड विद डिफिकल्टी। जब कोई सांस लेते हुए आवाज करता है अपने सांस की, उस सांस को हम वीजी ब्रेथ कहते हैं। तो ऐसी ही आवाज आ रही थी उस लेडी की जो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। Miracle recovery, the headline said. Sebastian Schultz, a 14-year-old schoolboy from South London, awoke yesterday from a coma that doctors feared might last forever. अब जो न्यूज़पेपर में न्यूज थी माइकल पढ़ रहे हैं, उसका टाइटल था मिरेकल रिकवरी और उसमें लिखा हुआ था कि एक लड़का है 14-year-old सेबेस्टियन शल्ट्ज जो साउथ लंदन में रहता है, वो कोमा में से जाग गया। कोमा इज अ प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ डीप अनकॉन्शियसनेस, जैसे कि बहुत लंबी बेहोशी, उसको हम कोमा कहेंगे। तो इसका मतलब है कि जो लड़का है सेबेस्टियन, ये बहुत देर से बेहोश था, बहुत दिनों से, बहुत हफ्तों से बेहोश था और अचानक ये अपनी बेहोशी से जाग गया। लेकिन डॉक्टर्स को तो ये डर था कि ये कभी भी कोमा में से निकलेगा नहीं। Let us read ahead. It couldn't be the Sebastian Schultz I had met. अब जब नरेटर ने ये न्यूज पढ़ी तो वो भी एक सेबेस्टियन शल्ट्ज को जानते थे, तो वो ये सोचते हैं कि ये वो वाला सेबेस्टियन नहीं हो सकता। पर उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था इस न्यूज में, क्योंकि ये नेम थोड़ा सा अनकॉमन है। तो उनको ये लगने लगा था कि दो लोग हैं सेम नाम के, थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी थी इस चीज की। इसलिए I leant forward to read the rest of the article. 6 weeks ago, Sebastian Schultz was badly injured in a motorway accident. His condition on arrival at the General Hospital was described as critical, though stable. Despite doctors' hopes, the boy did not regain consciousness. His parents were informed that their son was in a coma. अब यहाँ पर नरेटर जो है वो न्यूज पढ़ रहे हैं, तो न्यूज की जो आर्टिकल है उसमें लिखा है कि 6 हफ्ते पहले ये जो लड़का है सेबेस्टियन शल्ट्ज, उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था और जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी। क्रिटिकल मीन्स वेरी सीरियस। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की कि उसको होश में ले आए, पर नहीं, वो होश में नहीं आ सका और वो कोमा में चला गया। At a press conference, Mrs. Schultz said, "The doctors were doing all they could, but in our hearts we knew we needed a miracle." तो अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर मिसेस शल्ट्ज यानी कि सेबेस्टियन्स मदर, मिसेस शल्ट्ज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, पर हमें ये पता था कि अगर हम चाहते हैं कि सेबेस्टियन जिंदा हो जाए तो एक मिरेकल की जरूरत है। मिरेकल मीन्स अ वेरी लकी इवेंट दैट इज सरप्राइजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। तो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो तो ही सेबेस्टियन बच सकता है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसका वापस
अलाइव होना थोड़ा मुश्किल लग रहा था उसकी मदर को. Now that miracle has happened. At that moment, the woman's hand moved. I suddenly saw the photograph that went with the story and gasped. The boy in the picture was Sebastian. There was no doubt. But how? I muttered. Sebastian Schultz, the boy I'd got to know so well recently, had apparently been in a coma for all that time. I felt nervous and shivery. It didn't make any sense at all. अब फर्दर न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि वो जो मिरेकल है जो मिसेस शल्ट्स कह रही थी कि हमें चाहिए वो हो गया है, यानी कि कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई है जिससे कि सेबेस्टियन होश में आ गया है. तभी जो वुमन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी उसका हाथ हिला और जो हमारे नरेटर है माइकल, उन्होंने फोटोग्राफ जो थी न्यूज आर्टिकल के साथ सेबेस्टियन की, वो फोटोग्राफ देखी और देखते ही वो पहचान गए कि ये तो वही सेबेस्टियन है जिसको वो जानते हैं. पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये जो सेबेस्टियन है ये 6 हफ्तों से कोमा में पड़ा हुआ है. He could not relate the two things because he had met this Sebastian, लेकिन न्यूज़पेपर कह रहा था कि ये कोमा में है. तो ये चीज जब उन्होंने सोची तो उनको बहुत ज्यादा नर्वसनेस और शिवर महसूस हो रही थी. वो कांप रहे थे क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि अगर वो कोमा में है तो उनको वो कैसे मिला. कोई भी सेंस नहीं बन रही थी दोनों चीजों की. दोनों चीजें आपस में कोरिलेट नहीं हो रही थी. I stared out of the train window and ran through the events in my head. It all started a month ago. Dad and I had spent the entire Saturday afternoon at the computer fair. अब यहाँ पर नरेटर हमें बता रहे हैं कि वो स्टेयर कर रहे थे, यानी कि लुक्ड केयरफुली आउट ऑफ द ट्रेन विंडो. तो ये जो हमारे नरेटर है माइकल, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और तभी उन्होंने सामने बैठी एक लेडी के हाथ में न्यूज़पेपर देखा जिसमें ये रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी. और फिर वो सोचने लग गए कि क्या इवेंट्स हुए थे अभी नियर पास्ट में. तो वो कहते हैं कि 1 महीने पहले वो अपने डैड के साथ सैटरडे आफ्टरनून को कंप्यूटर फेयर में गए थे. कंप्यूटर फेयर इज प्लेस वेयर डिफरेंट कंपनीज हु सेल कंप्यूटर गैजेट्स गिज्मोस दे कम and people who love to buy all these things, they go there and they buy such articles. Dad's nutty about computers. He's got a Pentium 150 megahertz processor with 256 of RAM, a 1.2 GB hard disk drive and 16-speed CD-ROM, complete with speakers, printer, modem and scanner. It can do anything. Paint, play music, create displays. Even when my homework's rubbish, it looks very fantastic. अब यहाँ पर माइकल हमें बता रहे हैं कि उनके जो डैड हैं वो नटी हैं. नटी मीन्स क्रेजी अबाउट समथिंग एंड ही हैज अ पैशन फॉर इट. फॉर व्हाट? कंप्यूटर्स. माइकल के डैड क्रेजी हैं कंप्यूटर्स के लिए. वो कंप्यूटर फेयर से एक पेंटियम 150 मेगाहर्ट्ज खरीद कर लाए हैं. मेगाहर्ट्ज मींस 1 मिलियन हर्ट्ज. ये एक मेजर है फ्रीक्वेंसी का. इतना फास्ट प्रोसेसर खरीदा है उन्होंने. उसमें 256 GB रैम है, उसमें 1.2 GB हार्ड डिस्क ड्राइव है और 16 स्पीड CD-ROM है. और साथ में उन्होंने स्पीकर्स भी खरीदे हैं, प्रिंटर लिया है, मोडेम और स्कैनर. तो पूरा कंप्लीट सेट परचेज किया है उन्होंने कंप्यूटर फेयर से. और फिर माइकल बताता है कि उनका ये कंप्यूटर सेट कुछ भी कर सकता है. उसमें आप पेंट कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, डिस्प्लेस क्रिएट कर सकते हैं. और जब भी माइकल को अपना होमवर्क बोरिंग लगता है, रबिश मीन्स कोई चीज बिल्कुल बेकार, गार्बेज की तरह, तब भी उसको कंप्यूटर बहुत फैंटास्टिक लगता है. फैंटास्टिक मीन्स something which is far away from reality. It is very good and attractive. तो हमेशा माइकल को ये जो नई चीजें ये लोग खरीद के लाए हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं. वो इनको इनकी तरफ आकर्षित होते हैं. तो माइकल हमें ये बताते हैं कि अभी पिछले 1 महीना पहले वो अपने डैड के साथ कंप्यूटर फेयर में गए थे और उनके डैड जो कि एक कंप्यूटर लवर हैं
वहां से बहुत सारे गैजेट्स खरीद कर लाए हैं। बेस्ट ऑफ ऑल आर द गेम्स टॉर्नेडो, मी बैश, ब्लैक बेल्ट, कायरीन्स कासल. I have played them all. With the screen so big and the volume up loud, it almost feels as if you are inside the games, battling it out with the Z or B's, twisters or whatever. Technology was advancing every day and Dad could not resist any of the new gadgets or gizmos that came on the market. That was why we went to the computer fair. अब यहाँ पर माइकल ये बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ कंप्यूटर गेम्स भी खरीदी थी और उनके नाम हैं टॉर्नेडो, मी बैश, ब्लैक बेल्ट, कायरीन्स कासल। और वो कहते हैं कि इतना बड़ा कंप्यूटर स्क्रीन है और इतनी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाती है कि जब आप गेम खेल रहे हो तो ऐसे लगता है कि आप खुद गेम के अंदर ही हो। और वो फिर बताते हैं कि कई गेम में वो जेड से बैटलिंग कर रहे हैं, किसी में बी, किसी में ट्विस्टर्स के साथ, तो अलग अलग गेम्स हैं। और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो गई है कि उसके जो डैड है माइकल के, वो नए गैजेट्स और गिज्मोस खरीदने से अपने आप को रोक नहीं पाते। गिज्मोस मीन्स गैजेट्स, स्पेशली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो यहाँ पर गिज्मोस का मतलब है जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड इक्विपमेंट है। और उसके डैड हमेशा जो भी नए डिवाइसेस आते थे वो खरीद लेते थे और इसीलिए वो कंप्यूटर फेयर भी गए थे। We came away with a virtual reality visor and glove and a handful of the latest interactive Psychodrive games. They are terrific. Not only do the visor and glove change what you see, but better than that, you can control the action by what you are thinking. Well, cool. अब यहाँ पर माइकल हमें बता रहा है कि वो एक वर्चुअल रियलिटी वाइजर लेके आया था। वर्चुअल रियलिटी मीन्स कंप्यूटर जनरेटेड realistic images and sounds which enable the user to interact with this space. तो वर्चुअल रियलिटी का मीनिंग है कि कंप्यूटर के द्वारा, कुछ सॉफ्टवेयर के द्वारा ऐसी रियलिटी क्रिएट हो जाती है जो एक्चुअली रियलिटी नहीं होती है। और ऐसी वर्चुअल रियलिटी वाला वो एक हेलमेट खरीद के लाया था और वो ग्लव्स खरीद के लाया था। तो जब गेम खेलने वाला ये हेलमेट और ग्लव पहन लेता है तो वो कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है उसका माइंड। इन गेम्स को हम कहते हैं इंटरैक्टिव साइकोड्राइव गेम्स। इंटरैक्टिव मीन्स इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। तो कंप्यूटर इन्फ्लुएंस करता है गेम प्लेयर को और गेम प्लेयर इन्फ्लुएंस करता है कंप्यूटर गेम को। साइकोड्राइव मीन्स ड्रिवन बाय मेंटल पावर। तो ये जो गेम्स हैं इंटरैक्टिव साइकोड्राइव गेम्स, इसको जो प्लेयर है वो अपने माइंड से भी गाइड कर सकता है कि वो क्या करना चाहता है। और वो कहता है कि ये गेम्स टेरिफिक हैं। टेरिफिक मीन्स वेरी गुड। वो कहता है कि जो वाइजर और ग्लव है ये सब कुछ बदल देते हैं, जो भी आप देखते हो वो सब कुछ चेंज हो जाता है। और उससे भी अच्छा बात ये है कि जो भी आप सोच रहे हो उसी के द्वारा आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। सो दिस इज लाइक अ वर्चुअल वर्ल्ड जहां पर जो भी आप सोच रहे हो वो प्रैक्टिकली गेम में होता दिखता है। When we got them, I remember some of them were not new. Anyway, back at home, I launched myself off into the first of the games. It was called Wild West. अब यहाँ पर माइकल कहता है कि जब उसने ये गेम्स खरीदी थी तो उसने देखा था कि ये सब गेम्स नई नहीं हैं, कई गेम्स यूज्ड हैं, लेकिन फिर भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब वो घर पहुंचा तो उसने फर्स्ट गेम जिसका नाम था वाइल्ड वेस्ट वो खेलनी शुरू कर दी। स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट गेम माइकल खेल रहा था इसका नाम है वाइल्ड वेस्ट। तो ये गेम है अमेरिका में जो वेस्टर्न एरिया है, जो एक डेजर्ट टाइप है, टेक्सास वगैरह, वहां काउबॉयज होते हैं, आप जानते होंगे, तो उनसे रिलेटेड है ये गेम।